Hello guys, welcome back to our channel Wellness Wisdom. So today I had got a very interesting topic for you. As we know, it's a monsoon season. It's a very beautiful season for each one of us. However, in this beautiful season, we also face so many challenges related to our health. So we are going to look at the diseases which are caused during the rainy season, during this monsoon season, and what are their causes. मोस्टली रेनी सीजन में हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड जैसे डेडली डिजीजेस देखने मिलते हैं. और along with this, you also find very similar symptoms in each one of them, like fever, then body ache, yes, weakness. These are few similar symptoms that we see in this. So what we are going to do now is we are going to look at all these diseases one by one, their causes, symptoms, and how we can prevent them. So let's start our video here. So the first one is dengue. Now every year in India we see there are many people who face death because of dengue every year. So this disease is caused by a female mosquito which bites human being during the daytime and most probably by evening. तो जो डेंगू डिजीज है तो इसका कॉज ये है ऐसे है कि फीमेल मॉस्किटो जो होता है तो उनके काटने से हम ह्यूमन बींग को डेंगू होता है और ये जो मच्छर होते हैं वो दिन के वक्त और इवनिंग में ज्यादा काटते हैं. सो व्हाट आर द सिम्टम्स वी फाइंड इन सच पेशेंट. So the affected individual, they find the symptoms like sweating, headache, pain behind the eyes. Also, they feel like nausea, vomiting. Also, they find the rashes on the skin. And in severe cases, we find less urination and breathlessness problem in the patient. So there is also a risk of dropping in the platelet count during during the dengue, which can prove fatal if not addressed on time. So बहुत बार ऐसे होता है कि ये सारे सिम्टम्स के साथ एक सीवियर सिम्टम भी होता है जैसे कि लेस यूरिनेशन और ब्रेथलेसनेस हम देख सकते हैं पेशेंट में. और साथ ही साथ अगर हमने ये सारे सिम्टम्स को देखने के बावजूद कोई प्रिवेंशन नहीं लिया, कोई क्योर नहीं किया, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस. सो यू हैव टू मेक श्योर यू गो टू योर नियर बाय डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप फॉर द सेम. So next is chikungunya. Now this chikungunya disease is a very common disease in during the time of rainy season, in monsoon season, and it also spreads through mosquito. ये जो चिकनगुनिया है ये भी मच्छर के थ्रू ही स्प्रेड होता है. Now these mosquitoes are usually found in overhead tanks, coolers, plants or water pipe में भी. Now this infectious disease is also carried by the tiger mosquito. Also, a chikungunya patient experiences symptoms like acute joint pain, high fever, also the body chills, and certain complications of the disease include inflammation of the retina, heart, muscle, liver. So there are so many things like this kind of symptoms tells you that there might be a possibility you have a chikungunya. तो ये सारे symptoms अगर आप देखते हो तो हो सकता है कि आपको चिकनगुनिया हो. तो इसके लिए again I would suggest to go to your nearby doctor and get treated on the same. So the next is malaria. Now this disease in monsoon is caused by mosquitoes again. तो ये जो मलेरिया है ये भी मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है. Now there are like some water clogging during the rainy season, which is a major breeding ground for mosquitoes. तो होता ऐसे है कि हम देखते हैं रास्ते पे आते जाते कई बार बहुत सारे खड्डे होते हैं और उन खड्डे में जमा जो पानी होता है, ठीक है, तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मॉस्किटोज के लिए, जहाँ पे आप बहुत सारे मॉस्किटोज को जन्म लेते हुए देखोगे. उनके एग्स आप वहां देख सकते हो और जिसके चलते बहुत सारे मॉस्किटोज they come to life at this kind of places. That is why it is known as the breeding ground for mosquitoes. And if you look at the symptoms, अगर हम symptoms के बारे में देखें तो क्या क्या symptoms हमें देखने मिलते हैं. Symptoms जैसे कि high fever, फिर shivering, body जो shiver होती है हमारी, and body chills,
Also a lot of sweating is also one of the symptom, and also severe anemia. So these are a few symptoms that you will find in malaria, and it is very much important that you consult your doctor for the same. तो आपको make sure करना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है ये सारे symptoms अगर आप में देखने मिले तो, because it's always good to take the first step instead of having the last step of your life, isn't it? Great. अदरवाइज आपको बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया हो गया, विच लीड्स टू डेथ, लिटरली मतलब इंसान मर जाते हैं उसमें. ऑल्सो रेनल फेलियर एंड jaundice. So these are a few things that you will face if you don't treat the disease on the given point of time. तो अभी हमने देखा कि मानसून सीजन में कौन से डिजीज होते हैं. तो ये डिजीजेस कौन से मच्छर के काटने से होते हैं. इसके लिए 2 टाइप के मच्छर रिस्पॉन्सिबल है. तो फर्स्ट है एडिस इजिप्टी. सो दिस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड डिजीजेस लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, एंड मोस्ट ऑफ टाइम वी फाइंड दिस मॉस्किटो ब्रीड्स इन क्लीन वाटर. तो ध्यान रखिए, ज़्यादा दिन पानी स्टोर करके ना रखिए, क्योंकि डेंगू फीवर के मच्छरों की पैदाइश ये ज़्यादातर क्लीन वाटर में ही होती है. एंड द नेक्स्ट इज एनाफिलिस एंड क्यूलिक्स मॉस्किटोज. इन मच्छरों की वजह से मलेरिया फीवर स्प्रेड होता है, और ये मच्छरों की पैदाइश गंदे पानी में होती है. और क्यूलिक्स मॉस्किटो ये जनरली हमारे घर में पाए जाते हैं. सो द नेक्स्ट इज टाइफाइड. Now, it is one of the highly infectious monsoon-related disease. It is caused due to the contaminated food and water. And if we look at the symptoms, we find the prolonged high fever, weakness, also the abdominal pain, reduced appetite, and others. So, without proper treatment, there may be several complications in typhoid fever. तो हम देखते हैं ये जो टाइफाइड जो होता है, ये बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है. जैसे कि आपने अगर ऐसे पानी खुले में छोड़ दिया हो या फिर खाना खुले में छोड़ दिया हो, तो उसमें आप तो देखते ही कि किस तरह से फ्लाइज जो है वहां पे आके बैठते हैं, यानी कि मक्खी हुई, या फिर जब भी फूड कंटेमिनेटेड यानी कि पानी और फूड जब आप उसमें कुछ स्पॉट्स देखते हो जब खराब हो जाता है, तो जो है आपको ये डिजीज होता है. तो इट्स वेरी मच अनसर्टन फॉर यू टू अवॉइड टू जस्ट इग्नोर इट, एंड मेक श्योर कि आप फिर से प्रॉपर ट्रीटमेंट इस पे ले, टाइम पे ले, कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन द सेम फॉर टाइफाइड. चेकअप करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है. ऑल्सो इन मानसून सीजन देर इज अ हाई चांस ऑफ डायरिया. सो इन द रेनी सीजन, इन मानसून सीजन, द चांसेस ऑफ गेटिंग डायरिया इंक्रीजेस फॉर डिफरेंट रीजन्स. So like high humidity and rainfall can contaminate the water source, spreading harmful bacteria, viruses, and also the parasites that causes stomach infection. So इसमें होता यूँ है कि जो contaminated food and water जो है, जैसे कि हम देखते हैं बाहर जैसे जंक फूड होता है बना के रखते हैं बाहर ओपन में, और हम वो खाने जाते हैं. So we find the flus are sitting on it. वो खाने की वजह से हमें इन्फेक्शन होता है पेट में, जिसके चलते डायरिया होता है. सो वी हैव टू अवॉइड द जंक फूड्स आउटसाइड. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटोज. सो आई विल गिव यू सम प्रिवेंशन टिप्स. लाइक यू कैन यूज insect repellents anytime you are outdoors. Also wear long sleeved clothing, जैसे कि हाथ जो है हम पूरी तरह से कवर कर ले, ऐसे फोल्ड करके ज्यादा ना रखे अपने जो स्लीव्स है उनको, और पैर पूरी तरह से ढक ले, फुल पैंट पहने. ऑल्सो यू कैन स्केड्यूल आउटडोर एक्टिविटीज टू अवॉइड द टाइम ऑफ द मॉस्किटो. जैसे कि हमें पता है कि ये वक्त होता है मॉस्किटोज का, यानी मच्छरों का आने का, तो वो वक्त आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हो, कुछ बाहर घूमना या फिर खेलना, टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द मॉस्किटो टू कम एंड बाइट यू. तो उसको काटने से हम खुद को बचा सकते हैं. प्लस यू कैन रिपेयर द डैमेज विंडो और द डोर साइड. अगर आपके दरवाजे में कहीं पे कुछ होल है या फिर खिड़की टूटी हुई है कांच उसका, आप ये सारी चीजों को जो है रिपेयर कर दीजिए ताकि कोई मच्छर अंदर ना आ पाए. और हो सके उतना ज्यादा इवनिंग होने से पहले आप अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले,
मे बी अराउंड 4:35 इट्स द बेस्ट टाइम आई वुड प्रीफर, क्योंकि उसके बाद जो है मच्छर घूमने फिरने आने जाने चालू हो जाते हैं। तो आप ये टाइम पे जो है अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले। घर में कोई ऐसा खाना है जो खुले में पड़ा हो, उसे आप ठीक से ढक के रखें। अगर नहीं आपको वो कंटिन्यू करना खाना, तो आप उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड कर दीजिए। वो पानी को ठीक से डिस्कार्ड कर दीजिए, ऐसे कुछ ओपन में ना रखे। And also, I would suggest you to keep the cleanliness. Cleanliness is the best policy I would ever prefer. जितना आप अपने आप को, अपने घर को क्लीन रखोगे, डेफिनेटली कुछ मॉस्किटोज आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जहाँ पे डर्ट ज्यादा है वहाँ पे मॉस्किटोज आपको ज्यादा दिखने मिलते हैं। तो डर्ट को हटाए, क्लीनलीनेस रखे हमेशा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन आई वुड गिव यू फ्रॉम माई एंड। And also make sure that you and your family members are vaccinated during this time, and also stay hydrated, and drink warm and clean water is what I would suggest you from my end. And also please wash your hands very cleanly, in a very cleanly way, cleanly manner. ठीक है, ठीक से सोप यूज करना हाथ धोने के टाइम पे। एंड पर्सनल हाइजीन इज समथिंग यू हैव टू मेंटेन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। ऑल्सो आपको आपकी सराउंडिंग जो है उसको क्लीन रखना है। अगर किसी और ने नजरअंदाज किया है, कोई पानी पड़ा है गंदा है और लेकिन आपको दिखे, तो आप प्लीज उसे क्लीन कीजिए। तो जितना आप अपने आप को और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, तो मच्छर आने के चांसेस पूरी तरह से कम हो जाते हैं। So these are few prevention tips that I have given you. But if still you have any doubts, any concerns, any questions, please feel free to ask me in the comment box below. And I'll be really happy कि मैं आपको हो सके उतने जल्दी से जल्दी आपको आंसर्स दे दूं, आपको रिप्लाई दे दूं आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है? एंड आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर ऑलरेडी हो चुके रहेंगे। लेकिन फिर भी if you have anything, please type in your questions in the comment section below. And please don't forget to like, share and subscribe our channel. So thank you once again for watching this video, and I wish you have a great day ahead. Thank you so much. Stay safe and keep safe. Bye. Take care.